Hello students, in this video we will solve question number 44 of chapter cash flow statement from book T.S. Grewal edition 2021. Let us read the question together. Following is a balance sheet of Fine Product Limited as at 31st March 2021. बेटा सबसे पहले हमें शेयर होल्डर फंड गिवन है जिसमें हमें शेयर कैपिटल गिवन है एंड वी कैन सी दैट द शेयर कैपिटल इज राइजिंग. सो इट इज इशू ऑफ शेयर कैपिटल. और ये कहाँ ऐड होगा बेटा? दिस इज इनफ्लो ऑफ कैश. इट विल बी एडजस्टेड अंडर हेड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. नेक्स्ट बेटा हमें इस क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है. रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व का बैलेंस 20,000 से 30,000 हो रहा है. सो देयर इज इंक्रीज and also the profit is rising from 18 to 27,000. Both these items will be adjusted under head operating activities. दोनों ही items operating activities में adjust होंगी. Then we are given trade payables, other current liabilities and short term provisions. Short term provision के लिए you can see there is a note. Other current liabilities will be a part of operating activities as they are part of working capital. तो ये तो आपका आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में. शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है, आपके पास ओपनिंग बैलेंस भी है और आपके पास क्लोजिंग बैलेंस भी है प्रोविजन फॉर टैक्स का. बट आपके पास कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है प्रोविजन फॉर टैक्स की. सो दिस ओपनिंग बैलेंस विल बी आवर टैक्स पेड and this closing balance will be our tax made, and both of them will be adjusted under head operating activities. Provision for tax will be adjusted under head operating activities. Then beta we are having non-current investments. Non-current investment में हमें tangible assets given है note number 3 और इसका हमें बैलेंस गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग का और प्लांट एंड मशीनरी का. बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस आर गिवन. देन वी आर गिवन intangible assets. We can see that intangible assets are falling because they are not increasing. If they are increasing, then they are being purchased, then they are a part of investing. Right now they are a part of operating activities because जब हमारी intangible assets fall करती हैं, it means there is amortization of intangible assets, so they will be a part of operating head. However, these tangible assets are a part of investing activities, so this is a part of investing, whereas intangible assets are a part of operating head. We are also having balance of non-current investment which are also part of investing head. Current assets में inventory और trade receivable are a part of operating activities, but cash and bank balance will be used at the last for making final adjustments. Question में हमें proposed dividend given है, हमें previous year का proposed dividend भी given है, हमें current year का proposed dividend भी given है, हमें previous year के proposed dividend को ही adjust करना है. This will be added under head operating activities so as to calculate net profit before tax and extraordinary items, and it will be subtracted under head financing activities as it will lead to outflow of cash under head financing activities. तो ये बेटा फाइनेंसिंग में माइनस होगा और ऑपरेटिंग में ऐड होगा. आपको करेंट ईयर का जो बैलेंस गिवन है उसको सिंपली इग्नोर करना है. इस 45,000 का आपको कुछ भी नहीं करना है. यू विल सिंपली इग्नोर द बैलेंस ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड which is given for current year. Now let us see the solution. We will first prepare our working note, and in working note we have only one account which is provision for tax account. आप देख सकते हैं provision for tax account के लिए given detailed information कि अगर आपके पास कोई additional information नहीं है provision for tax की, तो आप ओपनिंग को टैक्स पेड मानेंगे और क्लोजिंग बैलेंस को टैक्स मेड मानेंगे.
Then I have also given that how it will be adjusted. यहाँ लिखा हुआ है कि टैक्स पेड ऑपरेटिंग हेड में आपका सब्ट्रैक्ट होगा, जबकि जो टैक्स मेड है वो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करने के लिए ऐड हो जाएगा. I hope this concept is clear. Now let us see how our cash flow statement will look like. See beta, you have to write in the books of Fine Product Limited cash flow statement for the year ending 31st March 2021, and this statement is being prepared as per revised accounting standard 3. I was not having space, so I have not written, but otherwise in exam you have to write it. Now let us read the question. बेटा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारा पहला हेड है, और इसी सीक्वेंशियल ऑर्डर में आप अपने हेड्स को लिखेंगे. पहला ऑपरेटिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग, एंड लास्ट थर्ड हेड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले हम अपना नेट प्रॉफिट लिखेंगे, विच इज द डिफरेंस ऑफ करेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर बैलेंस. करेंट ईयर का बैलेंस 27 है, प्रीवियस ईयर का 18,000 है, सो आवर नेट प्रॉफिट इज 9,000. I have also told you in my previous videos that we have to do RTDX for calculation of net profit before tax and extraordinary item. यहाँ हमें reserve which stand for R is given. Difference is 10,000. Provision for tax which is tax made. बेटा ये हमारा closing वाला provision for tax का balance है, which is standing as rupees 32,000. तो हमें इस balance को add करना है. प्रपोज डिविडेंड हमें प्रीवियस ईयर का ही लेना है, वो हमने यहाँ ऐड कर दिया, दैट इज 39,000. हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ गया 90,000. आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हमारे पास बेटा नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. आपको क्वेश्चन में गिवन है गुडविल का एमोटाइजेशन. हमारी करंट ईयर की गुडविल 40,000 हो रही है, प्रीवियस ईयर की 50,000 थी. दैट मींस देयर इज अ फॉल. दैट फॉल विल बी एडेड अंडर हेड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. इसके बाद व्हाट वी विल गेट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल. और वर्किंग कैपिटल में बेटा हमें किसको एडजस्ट करना है? वर्किंग कैपिटल में हमें एडजस्ट करना है अपनी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को. अब करंट एसेट्स में हम कैश और कैश इक्विवेलेंट को यहाँ नहीं कंसीडर करेंगे, और करंट लायबिलिटीज में प्रोविजन फॉर टैक्स ऑलरेडी हम एडजस्ट कर चुके हैं मेड, और बाद में हमने जब नेट कैश फ्लो का बैलेंस निकालना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, देन इट विल बी पेड वन, दैट विल बी सबट्रैक्टेड. हमें इस क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी, इफ आई टॉक अबाउट ट्रेड पेबल में राइज गिवन है. जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी दैट मींस योर कैश विल राइज. It's given 18,000. There is decrease in other current liabilities, so this will leads to outflow of cash. Inventories में जब decrease हो रहा, that means somewhere they are being sold. आपके पास cash आ रहा है. Trade receivable rise हो रहा है. This will lead to outflow of cash. You will get cash generated from operating activity which is standing at 1,01,000. जब आप ये सभी एडजस्टमेंट कर देंगे, लास्ट स्टेप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में है कि आप टैक्स पेड माइनस करेंगे, और ये कौन सा बैलेंस है? ये आपका प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग वाला बैलेंस है. और जैसे ही आप ये ओपनिंग बैलेंस सबट्रैक्ट करेंगे, व्हाट यू विल गेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. वंस यू आर थ्रू विद योर ऑपरेटिंग हेड, द नेक्स्ट स्टेप इज इन्वेस्टिंग. इन्वेस्टिंग हेड में आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग में यू कैन सी देयर इज फॉल, सो दैट फॉल विल लीड टू इनफ्लो ऑफ कैश एज वी विल कंसीडर इट एज सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. देन प्लांट एंड मशीनरी में राइज हो रहा है, इट विल बी कंसीडर्ड एज परचेज. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का बैलेंस भी बेटा 10,000 से 35,000 का हो रहा है. अगेन देयर विल बी आउटफ्लो ऑफ कैश. जब हम इन तीनों को एडजस्ट करेंगे, वी विल गेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. We can see there is outflow of cash. Then we are having financing head. Financing head में हमारे पास हमारा शेयर कैपिटल का इशू है.
3.5 लाख से अमाउंट हमारा जो है वो क्लोजिंग बैलेंस में आ रहा है. अर्लियर इट वाज 3 लाख. सो देयर इज इशू ऑफ शेयर ऑफ 50,000. प्रपोज डिविडेंड पे करेंगे प्रीवियस ईयर वाला बैलेंस ही हमारे पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. जब हमारे पास ये तीनों बैलेंसेस आ जाएंगे हम इन तीनों को एडजस्ट करेंगे. 73,000 माइनस 73 विल बी 0. हमारे पास नेट कैश का बैलेंस भी 11,000 ही आ रहा है. और जब हम इस नेट बैलेंस में अपना ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट व्हिच इज गिवन 17,000 उसे ऐड करेंगे तो वी विल गेट आवर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. सो वंस यू आर डन विद दिस स्टेप, अगर आपका नेट बैलेंस में ओपनिंग बैलेंस ऐड करने के बाद कैश और कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग के इक्वल आता है, then that means your answer is correct. Arithmetically it is correct, but yes, you should not make any error. Otherwise, treatment should be correct. Thank you for watching this video. Stay connected and do subscribe my channel.